Unacademy. Let's crack it. आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि एक बार आप रियल टाइम प्रोसीडिंग को डायरेक्टली फ्लो में देखिए। ओके, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसको 3 मिनट तक जो है एग्जैक्ट जो प्रोसीडिंग है उसको देखिए। फिर हम क्या करेंगे, लर्निंग मोड में लिंकिंग वकालत को समझेंगे। फिर उसके एक एक पॉइंट्स को एक एक सेंटेंस के अंदर जो हमारे लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए हेल्पफुल है उसको समझेंगे। और फिर एंड में यही प्रोसीडिंग, यही 3-4 मिनट का प्रोसीडिंग मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वापस दिखाऊंगा। और मुझे आप जरूर बताइएगा कि शुरुआत के 3 मिनट में जब आपने लिंकिंग वकालत की लर्निंग से पहले जो देखा था और सेम वीडियो जब आपने लिंकिंग वकालत की लर्निंग के बाद में देखा है, तो आपको कोई इंपैक्ट, कोई अंतर, कोई डिफरेंस दिखाई दिया, महसूस हुआ या नहीं? Well, may I have liberty to mention, my lord? One urgent circulation, my lord. The original suit was filed for the specific performance, wherein the handwriting expert's opinion was in dispute. So special seal application was filed, and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. Your LPA is not maintainable under 227. My lord, I will convince, my lord. I will convince, my lord. You will dismiss it now itself. At present, my lord, I am not having, but I am sure. Give the LPA number. LPA that filing 22336 of 2022, my lord, subject to removal of that, subject to removal of the office objections, my lord. Why do you don't take the trouble at all? We'll dismiss it now itself. Sir, Surya Devi My lord, case. there is a judgment, my Sir, lord. I will show 152. it. At least I may be given some opportunity at least. Argue. But my lord, at present, my lord, Argue. We also don't have papers. Handwriting expert. Order 26, Rule 10. my lord, at present, my lord, I am not having that copy. Absolutely. I am 100%. I have read that. Sir, we are going to tell you now it's a specific performance suit. Correct? Please, my lord. You are the defendant. You have Yes, sir. denied the execution of the agreement, including the signature found. Other side has denied. And you are the plaintiff. That is, my lord. So you want an appointment. Wait, please hear. Please, You want I'm sorry, appointment I'm of a sorry. commissioner, handwriting expert, to ascertain whether this is the signature, actual signature or not. Under section 73 of the Evidence Act, the court itself can compare the signature. Please, my And lord. if it finds that it is not decipherable, it can send it to the expert. And even under 96, if you don't succeed in this suit, and the appeal is filed under section 96, challenging in the event of decree being passed against you, you can raise this as well as a ground, and the appellate court can also pass an order appointing commissioner at that point of time. No prejudice will be heard, no grounds, dismissed. But my lord, I have read that judgment. Now my get lord. the file. Only, my Dismissed. My lord, at least I may be given that opportunity only. Sir, that argue the matter, sir. Of course, my lord, but before that, I will come with that judgment. Thereafter, my lord, I may be permitted for Absolutely this no. argument. And apart from that, even on otherwise, your appeal under the intra-court appeals, letters patent appeal against an order passed under 227 is not maintainable. Then I will go through it, my lord. 230, 130, get that file. Well, I will. You said urgency. No, my They are lord, giving you so much. top priority. That is so much. But at least I must come with that With judgment. office objection. I must come with that judgment, my lord. Sir. With office objection. You ask them to get it. You said urgency. Please, my lord. We'll take it up. Please. Now, immediately, right now. Please, my lord. What else you want? All right. Urgency can't be said that it will arise only day after tomorrow at 12:30. Correct? That is, my lord. We are giving you instant. Either on merits or on this. Both you don't have a case. Well, I see it and then I will come. Let it come in usual course.
हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, लिंकिंग वकालत का आज एपिसोड 2 है और आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके सामने आने वाली, तैयार हो जाओ। देखिए, सबसे पहले हमें पर्पस क्लियर करना है, उद्देश्य जो है क्लियर करना है कि हम इस लिंकिंग वकालत के एपिसोड सीरीज को क्यों चला रहे हैं। यंग एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट कहीं कहीं जो क्या होता है अपने सीनियर से सीखता है, ऑनरेबल कोर्ट्स के हर एक स्टेटमेंट से सीखता है और ये कहेंगे हमारा प्लेजर है, हमारा सौभाग्य है कि आधुनिक दौर में, मॉडर्न जमाने के अंदर हाई कोर्ट्स की जो लाइव हियरिंग होती है उनको हम चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए लिंकिंग वकालत में हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, डिग्निटी ऑफ कोर्ट और डिग्निटी ऑफ लर्नेड एडवोकेट्स को ध्यान में रखते हुए। स्पेशली किस बात का प्रयास, ताकि हम उनकी हर चीज़ से, उनके लहजे से, उनके बोलने के स्टाइल से, उनके नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व करना है और सीखना है। ठीक है, लास्ट टाइम पहले एपिसोड आपको बहुत सारा प्यार मिला, तो इसीलिए आज ये सेकंड एपिसोड आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो पहले मैं आपको शुरुआत से एक जानकारी दे देता हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट पालना, ये एक वर्ड आपने सुना होगा। कई बार क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच, दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पर्सन जो है वो डिनाई कर देता है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब दूसरे वाले पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि उसके डिनाई करने से, उसके द्वारा दूसरी पार्टी के मना करने से उसको नुकसान हो सकता है, उसको लॉस सफ़र हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, वो कोर्ट के पास जाता है और कहता है माय लॉर्ड, इनको आदेश दीजिए कि ये क्या करें, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी ड्यूटी, अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करें। लेकिन जब कोर्ट डिनाई कर दे या फिर ऐसा सिचुएशन न जाए कि सामने वाली पार्टी बोले कि मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे, एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं किए थे, तो वहाँ पे अब क्या होगा, किस तरीके से वो पार्टी रिएक्ट करेगी, और अगर मान लीजिए कोर्ट ने डिनाई कर दिया तो उसके पास क्या रेमेडी होगी। ये सब कुछ, या कहें बहुत कुछ सीखेंगे आज हम एपिसोड के अंदर, लिंकिंग वकालत एपिसोड सेकंड 2। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट में हम बात करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मुद्दा सामने आया था और वहाँ पर किस तरीके से लर्नेड एडवोकेट साहब ने एफर्ट किया, वो आज वाकई में अप्रिशिएबल था। और किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने इस बारे में अपनी ओपिनियन रखी, किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने इस मैटर को डील किया, वो हमें सीखना है। और याद रखिएगा, किसी भी जज को रिकॉर्ड्स में, ऑन रिकॉर्ड कागजों में जन्म देने से पहले अंदर एक जज को डेवलप करना ज़रूरी है, और सिमिलरली बाहर के वकील को जगाने से पहले अंदर के वकील को जगाना ज़रूरी होता है। तो आइए चलिए सुनते हैं यहाँ पर इस प्रोसीडिंग को, कोर्ट प्रोसीडिंग को। यस, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि May I have liberty to mention, Yes. my lord, one urgent circulation, my lord. The original suit was. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने जज साहब, जो वकील साहब हैं, उनके वर्ड्स को जरा आप गौर फरमाइएगा। मैं थोड़ा सा इसको ना आज स्लो मोशन इफेक्ट भी दूंगा ताकि आप जो है इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा बैक ले लिया है। यस, अब ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट की पहली लाइन को सुनना आप। One urgent circulation, my lord. वन अर्जेंट सर्कुलेशन। देखो क्या होता है, जब कभी भी आप ऑनरेबल कोर्ट से चाहते हो कि कोई मैटर जो है वो जल्दी, अर्ली बेसिस पर सुना जाए, तो हम अपनी जो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते समय सेंटेंस में इस तरह का वर्डिंग यूज करता है कि अर्जेंट सर्कुलेशन, मतलब हमें इस मैटर को अर्जेंसी पे रखना है, ऐसी गुजारिश हम कोर्ट से कर रहे हैं, अर्जेंट सर्कुलेशन। तो ये लाइन, Lord, the original suit was एग्जैक्टली तो यहाँ पर वापस वॉइस को नॉर्मल कर लेता हूँ, सिर्फ इस वर्ड को सुनाने के लिए आप लोगों को बीच कई बार क्या होता है, देखो कोर्ट की, एडवोकेट्स की स्पीड बहुत हाई फाई होती है ना, मतलब बहुत फ्लुएंसी के साथ मामला चलता है और फ्लुएंसी को हम पकड़ नहीं पाते, जिस फ्लुएंसी के साथ में वो लोग डील करते, जिस रफ्तार के साथ में, धारा प्रवाह के साथ में वो बोलते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ मौका लगेगा हम एजुकेशनल पर्पस के लिए उस चीज़ को थोड़ा सा प्ले स्पीड को कम करके सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो नॉर्मली इस मैटर को डील करते हैं आगे। यस, filed for the specific performance wherein the indicting expert's opinion was in dispute. So special seal application was filed and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. देखिए, अभी तक पता है लर्नेड एडवोकेट साहब ने क्या कहा कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ऑब्जर्व करना है। पता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग हर एक बंदे के दिमाग का क्या कहते हैं, कैप्चरिंग मोड नहीं होता, हर कोई इसको नहीं कैप्चर कर सकता। इसलिए आपको हर एक शब्द को बहुत ही लिसनिंग पावर एकदम स्ट्रॉन्ग करके पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, और वहाँ पर क्या हुआ, किसी पार्टी ने जो है साइन डिनाई कर दिए, है ना,
जो साइन किए हुए थे वो डिनाई कर दिए वगैरह। उसके अगेंस्ट में इन्होंने कोई अपील वगैरह फाइल किया था और अपील जो है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डिसमिस कर दिया। फिर इन्होंने एलपी का मतलब होता है लेटर पेटेंट अपील, लेटर पेटेंट अपील, जहां पर इंट्रा कोर्ट अपील होती है हाई कोर्ट के सिंगल जज के जो ऑर्डर है डिग्री के खिलाफ में, आप क्या करते हो उसी की डिविजनल बेंच के सामने है जो जाते हो। ठीक, अब जरा फिर से अगेन आई एम यूजिंग दिस टेक्निक, क्या करूंगा मैं, इनकी वॉइस स्पीड को थोड़ा स्लो करूंगा ताकि आप इनिशियल आर्ग्यूमेंट को ऑब्जर्व कर पाए। इनिशियल आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो केस का ब्रीफ है जो करता है। यस, तो मैंने इसको थोड़ा सा वापस बैक लिया है और इसकी स्पीड को मैंने यहाँ पर स्लो किया है, 0.75 ले लेते हैं। एंड नाउ लिसन, wherein the indicting expert's opinion was in dispute. So special CL application was filed and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. Your LP अगेंस्ट विच एलपी हैज़ बीन फाइल, यानी कि सिंगल जज बेंच ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने एलपी फाइल किया है। नाउ लेट्स सी, अब देखो कहते हैं ना कि एक जज को शुरुआत से ही पता चल जाता है, परिंदा उड़ना शुरू नहीं करता है लेकिन जज एक क्या कहते हैं, एक पारखी को पता चल जाता है कि कितनी ऊंची उड़ान भरेगा। उसी तरीके से ऑनरेबल जजेस हुआ करता है, वो केस को देखते ही परख लेता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब देखते हैं इस केस में आगे क्या चलता है। अभी तक तो हमने देखा है कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मामला था, एक्सपर्ट ने डिनाई कर दिया, सॉरी जो पार्टी है उसने साइन से डिनाई कर दिया, तो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की एप्लीकेशन लगाई गई थी, वो जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपील की, अपील वापस डिसमिस हो गई, इसलिए एलपीए फाइल किया। नाउ लेट्स सी क्या यहाँ पे रुक आगे रहता है। LPA is not maintainable under 227. My lord, I will convince, my lord. I will convince, my lord. There is You will dismiss it now itself. अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ एक लाइन पर वर्ड्स को रोक रहा हूँ, वापस सुनो क्या कहा जाए सामने। देखो हमें ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। लेट्स सी, Under 227. expert's opinion was in dispute. So special CL application was filed and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. Your LPA is not maintainable under 227. एक लाइन के अंदर क्लीन बोल्ड क्या कहा कि योर एलपीए इज नॉट एंटरटेनेबल अंडर 100A and 227। अब शायद आपने इस लाइन को गौर नहीं किया होगा या किया है तो इसके अल्फाजों को ज़रा थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। देखो हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है। मैं पहले आपको सेक्शन स्क्रीन पर रखता हूँ ताकि आप इस एक लाइन के अंदर पूरा मतलब है जो समझ पाए। लिंकिंग करना है हमें हमारी पढ़ाई को भी कानून से। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में एक सेक्शन 100A आता है जो कहता है नो फर्दर अपील इन सर्टन केसेस। कुछ मामलों के अंदर कोई फर्दर अपील नहीं होगी। आपको स्क्रीन पर जो है यहाँ पर दिख रहा होगा सेक्शन 100A CPC क्या लिखा हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लेटर पेटेंट्स फॉर द हाई कोर्ट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ है उसके होते हुए भी, यानी कि इस प्रोविजन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। वेयर एन अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge। यानी कि सिंगल जज के इस ऑर्डर डिक्री के खिलाफ उसी कोर्ट में आप वापस अपील नहीं कर सकते। तो 100A और साथ ही साथ में यहाँ पर ऑनरेबल जज ने 227 वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। 227 का मतलब है आर्टिकल 227। देखो क्या होता है प्रैक्टिकली कई बार कुछ चीज़ें जो है ना रूटीन में चला करती है तो उसको पूरा फॉर्मेलिटी नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं दी जाती है, सीधा डायरेक्टली वर्डिंग से जो बोलते हैं। जैसे हम लोग कई बार 617 की एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो 617 की एप्लीकेशन लगाएगी तो 617 मीन्स 617 मीन्स ऑर्डर 6 रूल 70, लेकिन वो फॉर्मेलिटी वाले वर्डिंग्स को कट करके डायरेक्टली बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 227 यहाँ पर क्यों आता है जरा समझना। देखो कॉन्सेप्ट जिस आप में से जिस कैंडिडेट्स को पता होगा उनको जानकारी होनी चाहिए कि लेटर पेटेंट अपील के जो मैटर्स होते हैं ना वो जनरली कब आता है, जब आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई मैटर आया है और उसके अगेंस्ट में आप अपील कर रहे हो, तो 226 के जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट में आप एलपीए लेटर पेटेंट अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जजमेंट अंडर आर्टिकल 227 आर नॉट अपीलेबल एज एलपीए। मतलब हमें सेक्शन 100A CPC को आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लिंक करके इस बात को ऑब्जर्व करना है। और इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया। ठीक है,
जरा वापस सुनिए। expert's opinion was in dispute. So special seal application was filed and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. Your LPA is not maintainable under 227. एग्जैक्टली गॉट My इट। lord, I will अब आगे furnish, बढ़ते my हैं। lord. I will furnish, my lord. You There is- give it, we'll dismiss it now itself. At present, my lord, I am not having, but I am sure. Give the LPA now. अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्टार्ट में कह दिया कि हम इसको इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, डिसमिस है जो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ पर ही एक लर्नेड एडवोकेट का हुनर भी देखने को हमें सीखने को मिलता है कि कोर्ट ने तो डिसाइड कर लिया कि भैया हम तो इसको अभी डिसमिस करेंगे, बट फिर भी लर्नेड एडवोकेट्स के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो उस कोर्ट को थोड़ा सा लास्ट उम्मीद तक, एक अंतिम कहते हैं ना आशा तक लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लर्नेड एडवोकेट साहब ने यहाँ पर किस तरीके से आगे डील किया है। LPA number. LPA that filing 22336 of 2022, my lord, subject to removal of 2000? the office objections, my lord. Only. Why do you don't take the trouble at all? We'll dismiss it now itself. अगेन सेकेंड टाइम ऑनरेबल जज साहब ने स्टॉक दे दिया है कि भैया हम तो इसको इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, डिसमिस है जो कर रहे हैं। अब इन्होंने ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट साहब ने बताया कि हमने LPA फाइल किया है, लेकिन फिर भी कोर्ट का सेकंड टाइम, पहला ओपिनियन बोला इमीडिएटली डिसमिस करेंगे, सेकंड टाइम भी बोला डिसमिस करेंगे। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। क्या ये पिटीशन आगे बढ़ पाएगी क्या? एक्साइट करो खुद को, क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट नहीं आएगा हम वकालत को सीख नहीं सकते। यस Sir, Surya Devi My lord, case. there is a judgment, my Sir, lord. I will show it. 152. At least I may be given some opportunity, at least. Argue. But my lord, at present. अब यहाँ पे आपने शायद एक चीज नोटिस नहीं की। अब देखना क्या था ना, कई बार जादूगर जादू करता है और उसके जादू को अगर आप स्लो मोशन में नहीं देखोगे तो हम उसके जादू को पकड़ नहीं सकते, है ना। अब जरा इसकी लास्ट लाइन जो है कोर्ट प्रोसीडिंग में वापस रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा सा स्पीड इसको 0.75 पे लेके चल रहा हूँ। अटेंशन पूरा बना के रखिएगा। यस Dismiss it now itself. Sir, Surya Devi My lord, case. there is a judgment, my Sir, lord. यहाँ पे सूर्योदय मतलब ऑनरेबल जज ने किसी जजमेंट का जिक्र किया होगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। सूर्योदय का कोई जजमेंट ऐसा हुआ होगा जहाँ पे इस बारे में कोई सिमिलर पॉइंट आया होगा, तो कोर्ट ने शॉर्ट में सूर्योदय का जिक्र है जो किया है। I will show it. 152. At least I may be given some opportunity, at least. Argue. अब यहाँ पर जैसे ही एडवोकेट साहब ने कहा कि एटलीस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, इमीडिएटली जज साहब ने बोला आर्ग्यू मतलब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करो। एडवोकेट ने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तो मिलना चाहिए, तो जज साहब ने कहा चलो डन, आर्ग्यू, अपना केस को आर्ग्यू है जो कीजिए, आगे बढ़ते हैं। But my lord, at present, my lord, Argue. We also don't have papers. Handwriting expert. Order 26, Rule 10. my lord, आपको एक बात पता है, किसी भी कोर्ट का जो जज होता है ना, वो कानून का, लॉ के नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया होता है। आज आपको इस एपिसोड के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी, और अगर ये चीज़ आपके दिल को छू जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पेक्ट जरूर जाहिर करना ऐसी डिग्निटी के लिए, है ना, जिनसे मतलब आपको वाकई में लगेगा कि एक जज जो कहते हैं ना, एक वीआईपी होता था, एक जज होता है, वो उसको सारे प्रोविजन जो है ना दिमाग के अंदर एकदम कैलकुलेटर के पॉइंट्स की तरह टक 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 छपे हुए होता है, प्रिंट होता है। अब आप देखिए, इन्होंने जज साहब ने इमीडिएटली यहाँ पर कई कुछ रूल्स का जिक्र है जो क्या, और हम भी क्या करेंगे, साथ साथ उन रूल्स को सीखेंगे। ठीक ना, थोड़ा बैक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर ताकि इस बात को हम समझ पाए। Expert. Order 26, Rule 10. ऑर्डर 26 रूल 10 क्या होता है ये? आपको पता हो कि वकील साहब ने शुरुआत में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, अगर आपने अच्छे से सुना था तो। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट क्या होता है कि भाई सामने वाले ने मना कर दिया कि मैंने तो ये एग्रीमेंट किया ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? याद करो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68, 69, 70, 71 वगैरह को। क्या था? अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को अगर डिनाई करते हैं तो उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? तो वहां पर आते हैं कि भाई एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाए, और साथ ही साथ में वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया है तो उनके सिग्नेचर हैंडराइटिंग को वेरीफाई किया जाएगा। अब पार्टीज ने मना किया, सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया कि तो मेरे साइन वाइन ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा कि भाई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए, चेक किया जाए कि ये साइन जो है इनके है या नहीं है। वैसे कई सारे प्रोविजन हैं हैंडराइटिंग को प्रूफ करने के, 45, 47, 67, 73 इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता है, लेट्स सी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऑर्डर 26 रूल 10 का, एक्चुअल में क्या होता है? ऑर्डर 26 है कमीशन भेजना। क्या है? कमीशन भेजना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1976 में एक नया रूल है जो ऐड किया गया था ऑर्डर 26 में।
उससे पहले स्पेसिफिकली अगर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन था नहीं, ठीक है। जैसे इसमें आप जानते होंगे सेक्शन 75 सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए कमीशन जारी करवाता है, राइट। तो अलग अलग पर्पस के लिए जो कमीशन जारी होती है उसमें एक होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन कराना वगैरह भी, जो कि रूल 9 में कवर होता है। बट रूल 9 के अंदर कहीं पर भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात है जो नहीं कही गई थी, जैसे एक्सपर्ट को अपॉइंट करवाना और उससे इन्वेस्टिगेट करवाना किसी पर्टिकुलर मैटर को, तो वो रूल 9 के किसी भी पर्पस में कवर नहीं हो पा रहा था। आप देखिए स्क्रीन पर रूल 9 आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो पर्पस लिखे हुए हैं कि इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम, रूल 9 किसका, ऑर्डर 26 का, इन एनी सूट इन विच द कोर्ट डीम अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी रिक्विजिट और प्रॉपर फॉर द पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, ऑफ इल्यूसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट, ascertaining market value, amount of any mean profit, amount of any damages, annual net profit वगैरह, तो उसके लिए वो कमीशन इशू कर सकता है। बट अगेन रूल 9 में कहीं पर भी आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं मिलेगा। तो 1976 में क्या हो गया कि एक नया रूल इंसर्ट किया गया 10A, रूल 10A, और वहां पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन बाय एनी साइंटिफिक एक्सपर्ट पर्सन, राइट। तो अब वहां पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी एक साइंटिफिक एक्सपर्ट पर्सन माना जाता है जो क्या करता है, उसको चेक करता है, ओके। तो ये रूल 10A के अंदर जब आप अंदर जाके इसको पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दिखे मिलेगा कि जब प्रोविजन ऑफ रूल 10 हैज बीन अप्लाइड, जरा रूल 10A का सब रूल 2 देखिए और सिर्फ शुरुआत की 4 वर्ड्स को देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ रूल 10 ऑफ दिस ऑर्डर शैल अप्लाई। रूल 10 के प्रोविजन यहां पर भी अप्लाई होंगे, कहां पर, 10A में। लेकिन जब ऑनरेबल जज साहब ने शब्द इस्तेमाल किया ऑर्डर 26 रूल 10, तो एक बार एक साधारण स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आ जाएगा, यार रूल 10 क्यों बोला सब ऑनरेबल जज साहब ने, क्योंकि रूल 10 तो जो लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात होता है, और यहाँ तो बात कर रहे हैं कि साइन को जो है, सिग्नेचर को जो है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाना है, ये तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ऑनरेबल जज साहब को पता है कि रूल 10A के अंदर जिस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है वो रूल 10 होती है, 10A के अंदर रूल 10 छुपा हुआ है, लिंकिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ऑनरेबल जज साहब ने क्या कहा, जरा एक लाइन वापस सुनते हैं। यस, Handwriting expert, order 26 rule 10. My lord, at present, my lord, I am not having that copy, but I am 100%, but I have read that. Sir, we are going to tell you now it's a specific performance suit, correct? Please, my lord. You are the defendant. You have denied the execution of the agreement, including the signature found. Other side has denied. And you are the plaintiff. अब देखो, अब पता है ऑनरेबल जज ने कहते हैं ना कि चेहरे देखकर पता लगा देते हैं कि दिमाग के अंदर क्या है। तो यहाँ पर ऑनरेबल जज ने अपने एक्सपीरियंस से सीधा बता दिया, भाई तुम्हारे केस में क्या क्या है मुझे सब दिख रहा है, आपके केस में क्या क्या है सब दिख रहा है, आप डिफेंडेंट हो, ये आपने सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के संबंध में, आपके अगेंस्ट में फाइल हो रखा है, ठीक है। आपने मना कर दिया कि ये एग्रीमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया नहीं है, ठीक, इसीलिए अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन लगाएगी किसके, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। उसने जो ओपिनियन दी उससे आप सहमत नहीं थे, एग्री नहीं करते थे, तो आपने हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के अंदर अपील फाइल की, ठीक है, और अपील जो आपकी एडमिट नहीं हुई इसलिए आप यहाँ पर एलपी फाइल कर रहे हो वगैरह। और साथ ही साथ में प्लेंटिफ का रोल भी बताया। लेट्स सी, That is true, my lord. So you want an क्या इस एक appointment? लाइन को वापस सुना जाए? Please hear, Yes. you want I'm sorry. appointment, other side has denied. And you are the plaintiff. That is true, my lord. So you want an appointment, please hear, Please, you want I'm sorry, appointment of I'm a sorry. commissioner, handwriting expert, to ascertain whether this is the signature, actual signature or not. Under section 73 of the Evidence Act, the court itself can compare the signature. Please, अब ये लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 में। कोर्ट के पास पावर है कि वो हैंडराइटिंग सिग्नेचर को कंपेयर कर सकता है। किससे कंपेयर कर सकता है? स्क्रीन पर आपके सामने सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट है। जो एडमिटेड या प्रूव्ड हैंडराइटिंग के सिग्नेचर है उसको जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसके साथ में चेक किया जा सकता है। डिस्प्यूटेड का मतलब जहां पर एक पार्टी बोल रही है कि हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है, दूसरी पार्टी मना कर रही हो, वहां पे। तो सेक्शन 73 के तहत कोर्ट के पास पावर है, ये ऑनरेबल जज साहब ने कहा। लेट्स सी इट फर्दर। please, my And lord. if it finds that it is not decipherable, it can send it to the expert. And even under 96, if you don't succeed in this suit,
and the appeal is filed under section 96. ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है। मतलब कई सारे प्रोविजन जो है, कहते हैं ना मूसलाधार बारिश कैसे होती है, वैसे वैसे कई सारे प्रोविजन एक साथ आ रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर मैं कोशिश करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर जज साहब ने जिस प्रोविजन के बारे में बताया उस प्रोविजन को डिटेल में थोड़ा बताते हुए चलूँ। एक लाइन आपने नोट की हो, नहीं नोट की हो तो अब कर लीजिएगा। जब जज साहब ने सेक्शन 73 का जिक्र किया उसके तुरंत बाद एक लाइन बोली थी और वो लाइन आपको वापस सुननी है। मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड को जो है, अच्छा स्पीड ऑलरेडी स्लो है, अच्छा फिर भी हमें दिक्कत आ रहा है क्योंकि भैया फ्लुएंसी जो बड़ा शानदार है। यस, If it finds that it is not decipherable, it can send it to the expert. इन्होंने कहा इफ इट इज नॉट डिजर्वेबल या डिजायरेबल, ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया है। प्रैक्टिसेबल नहीं होता है ना, कि जब कमीशन से आप चीज़ों को डील करो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर उसको जहाँ पे कोर्ट के सामने करना प्रैक्टिसेबल नहीं होता है, डिजायरेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर कोर्ट कमीशन भेजता है। कमीशन भेजने का मतलब वहाँ पर कमीशन भेजाएगा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से, यहाँ पर इसका मतलब है कमीशन का। ओके, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हम क्या कराएंगे, चेक एज को करवाएंगे। And even under 96, if you don't succeed in this suit and the appeal is filed under section 96, आप सभी लोग जानते होंगे सीपीसी के अंदर अपील के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 96 से 112 में दे रखे हैं। तो 96 में जहां पर फर्स्ट अपील फाइल होती है उसका सर ने अभी जिक्र है जो किया है। challenging in the event of decree being passed against you, you can raise this as well as a ground and the appellate court can also pass an order appointing commissioner at that point of time. No prejudice will be caused. Heard? No grounds, dismissed. अब देखो, अब पूरा जस्टिफाई किया गया है कि आप जो ये ग्राउंड लेके आए हो कि भाई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है एग्री नहीं किया, फिर फर्स्ट अपील हुआ, फिर आप एलपी जाना चाहते हो, तो कोर्ट ने कहा है जब तुम 96 में जाके अपील करोगे, 96 सेक्शन 96 सीपीसी में जब आपके अपील करोगे तो उस समय अपील के अंदर ही ग्राउंड मेंशन कर सकते हो, कोई किसी तरह का कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, है ना। तो वहां पर आपके पास वो रेमेडी अवेलेबल रहेगी। जब तुम्हारा केस पूरा तुम्हारे अगेंस्ट में चला आया, तुम अपील की स्टेज में जाके ये चीज़ को फाइल कर देना, नो प्रिजुडिस कॉज। और इसलिए जो है हम इस मामले को डिसमिस कर रहे हैं। अब ये बात यहाँ पर कही है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो लेट्स सी, प्रोसीडिंग अभी बाकी है। But my lord, I have read that judgment. Now get the file. Only Dismissed. My lord, at least I may be given that opportunity only. Sir, that argue the matter, sir. of course, my lord, but before that, I will come with that अब judgment. ये बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, अगेन लर्नेड एडवोकेट साहब ने कहा मुझे मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी तो दो, सुनवाई का मौका तो दो। फिर जज साहब ने पूछा कि चलो आर यू आर्ग्यूइंग, तो लर्नेड एडवोकेट साहब ने बोला यस आई एम रेडी फॉर दैट। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब अगला जो स्टेटमेंट आना बहुत शानदार रहा। देखो हम यहाँ पर जो है ना किसी भी वे के अंदर ऐसी गुस्ताखी कर ही नहीं सकते कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग की डिग्निटी को हर्ट करने के बारे में सोचें। लेकिन कहते हैं ना कि हम कई बार अपने दिमाग को पजल्ड करके सीरियसनेस में ले जाके नहीं सीख सकते, आखिर है तो इंसान ना। तो हम थोड़ा सा लाइट चीज़ों को लाइट करके लाइट वे में रख के चीज़ों को सीखने का कोशिश है जो कर रहे हैं। ठीक, अब मामला कहाँ तक पहुँचा है, कोर्ट कह रहा है आर्ग्यू करोगे क्या, लर्नेड एडवोकेट साहब ने बोला हाँ। अब लेट्स सी अब क्या होता है। Come with that judgment. Thereafter, my lord, I will be permitted for Absolutely this. no. And apart from that, even on otherwise, your appeal under the intra-court appeals, letters patent appeal against an order passed under 227 is not maintained. Sir, I will go through it. यहाँ पे जज साहब ने कॉन्सेप्ट बताया कि 227 आर्टिकल 227 का कोई भी जो ऑर्डर जजमेंट होता है वो अपीलेबल नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। 100A को भी ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर जज साहब ने कहा है कि सॉरी ऑनरेबल लर्नेड एडवोकेट साहब ने कहा है कि मैं इस प्रोविजन को एक बार गो थ्रू करूंगा। 230, 130, get that file. Well, I will. You said urgency. No, my They are lord, giving you top priority. That is so much, but at least I must come with that With top is judgment. objection. I must come with that judgment, my lord. With top. यहाँ पर है ना ऑनरेबल जज साहब जो है, अब लर्नेड एडवोकेट साहब कह रहे हैं भैया आप ही ने शुरुआत में कहा था अर्जेंसी है, तो हम उसको इमीडिएटली है जो टेक ओवर कर रहे हैं इस केस को वगैरह, आप प्रोसीड है जो यहाँ पर कीजिए। लेट्स सी। Is objection. You asked them to get it. You said urgency. Please, my lord. We take it up. Please. Now, immediately, right now. Please, my lord. What else you want? Urgency can't be
said that it will arise only day after tomorrow at 12:30. Correct? That is, my lord, We are giving you instant. Either on merits or on this. Both you don't have a case. well, I see it, and then I will come. अब देख लो, मतलब यहाँ पर होने को जैसे हमने कहा कि भैया आप भले मेरिट पे जाओ और डायरेक्टली इसमें चले जाओ ना, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके पास केस नहीं बन रहा है। यहाँ पर जज साहब ने एडवांस के अंदर मतलब ये चीज़ उन्होंने फ्री ऑब्जर्व अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया। Let it come in usual course. बट फिर Well, may I have liberty to mention, my lord, one urgent circulation, my lord. The original suit was filed for the specific performance wherein the handwriting expert's opinion was in dispute. So special seal application was filed and it was decided, and against which, my lord, I have filed the LPA, my lord. Your LPA is not maintainable under 227. My lord, I will connect, my lord. I will connect, my lord. You will dismiss it now itself. At present, my lord, I am not having, but I am sure. Give the LPA number. LPA that filing 22336 of 2022, my lord, subject to removal of 2000? that, subject to removal of the office objections, my lord. Only Why do you don't take the trouble at all? We'll dismiss it now itself. Sir, Surya Devi my lord, case. there is a judgment, my Sir, lord. I will show it. 152. At least I may be given the some opportunity at least. Argue. But my lord, at present, my lord, Argue. We also don't have papers. Handwriting expert. Order 26, Rule 10. my lord, at present, my lord, I am not having that copy. But I am Absolutely. 100%. I have read that. Sir, we are going to tell you now it's a specific performance suit. Correct? Please, my lord. You are the defendant. You have Yes, sir. denied the execution of the agreement, including the signature found. Other side has denied. And you are the plaintiff. That is, my lord. So you want an appointment, wait, please hear, Please, you want I'm sorry, appointment I'm of a sorry. commissioner, handwriting expert, to ascertain whether this is the signature, actual signature or not. Under section 73 of the Evidence Act, the court itself can compare the signature. Please, my And lord. if it finds that it is not decipherable, it can send it to the expert. And even under 96, if you don't succeed in this suit, and the appeal is filed under section 96, challenging in the event of decree being passed against you, you can raise this as well as a ground, and the appellate court can also pass an order appointing commissioner at that point of time. No prejudice will be heard, no grounds, dismissed. But my lord, I have read that judgment. Now my get lord. the file. Only my- Dismissed. My lord, at least I may be given that opportunity only Sir, that. argue the matter, sir. Of course, my lord, but before Huh? that, I will come with that judgment. Thereafter, my lord, I may be permitted for Absolutely this no. circulation. And apart from that, even on otherwise, your appeal under the intra-court appeals, letters patent appeal against an order passed under 227 is not maintainable. Sir, I will go through it, my lord. 230, 130, get that file. Well, I will. You said urgency. No, my They are lord, that giving is you too much. top priority. That is too much. But at least I must come with that With office judgment. objection. I must come with that judgment, my lord. Sir. With office objection. You ask them to get it. You said urgency. Please, my lord. We'll take it up. Please. Now, immediately, right now. Please, my lord. What else you want? Well, Urgency can't be said that it will arise only day after tomorrow at 12:30. Correct? That is, my lord. We are giving you instant. Either on merits or on this. Both you don't have a case. Well, I see it, and then I will come. Let it come in usual course. बट फिर भी सब कुछ चीज़ों को सिचुएशन को समझने के बावजूद भी देखो ना, यही पता है, एक अलग तरह का एक पोलाइटनेस होता है एक ऑनरेबल जज के अंदर। फिर भी इस मैटर को अब सुना जाएगा, है ना। अपेरेंटली कहते हैं ना, अपेरेंटली दिख रहा है कि भैया ना तो कोई केस बन रहा है, ना इसको सुना जाएगा, ना इसको मैटर को अंदर कोई दम है, जीतने के चांसेस है। बट फिर भी ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है कि इट्स ओके, चलो हम आपको सुनेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल गेस्चर भी है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक एडवोकेट के लिए। खैर चलो, अब ये प्रोसीडिंग तो यहीं पर रही, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि इस प्रोसीडिंग के अंदर आपने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सीखा, जाना, समझा, है ना। तो ऐसे एपिसोड क्या हमें और भी कंटिन्यू करनी चाहिए क्या? और एक और चीज़, कमेंट्स में अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहो ना,
तो कोर्ट की डिग्निटी का, लर्नेड एडवोकेट के रेस्पेक्ट का हमें बहुत दिल से ध्यान रखना है, इस बात को ज़रूर फॉलो करना। ओके, और अगेन एट द एंड में वापस आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो लिंकिंग वकालत है ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए है, ऐसा नॉलेज जो शायद हमें इस दुनिया के बाज़ार में नहीं मिल सकता। तो इस छोटी सी कोशिश को आप कितना अप्रिशिएट करते हैं, आपको कैसा एनालिसिस फील होता है इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। थैंक यू।